This is Dr. Devitosh Acharya. I'm live with you right now, and I hope all of you must be watching today's topic. Please put up the fan. Okay, and today's topic is a very important topic, that is calculus. Okay, so calculus happens to be one of the what most important, and it's a tool for solving physics numericals. Okay, so that's why it is very important for you all. For standard 11, I'm not going to completely cover the chapter today, sir. But what I'm going on today, I'm going to make you very aware. I will make it very easy. I'm going to make you understand very easily what calculus is, and it will be very useful for you all to solve the numericals of physics, and that's how for students who are also preparing for JEE, okay, it's going to be helpful for them if they don't understand calculus properly. So mostly we'll be discussing the differentiation part, the product rule and chain rule itself. Okay, and on that basis, I'll just take it to a fundamental level. So what calculus is, and mostly in regard to differentiation. If the topic is differentiation itself, what is that? Let us know and understand what differentiation is. So prior to this, when we are coming to differentiation, okay. So this is the thing that we are going to discuss. So this is differentiation that we are going to learn first. But very prior to it, we must know from where the differentiation comes. I would ask some questions that you should keep it in your mind, that when we are going to learn this differentiation. So the very fundamental fact of differentiation that we are going to discuss today, we are going to learn today, is from where it comes. Okay, the first thing I hope all of you recall tan theta. It must have been taught to you, tan theta. Okay, so what is a tan theta? Why it is tan theta that I am discussing? Why not the whole trigonometry itself? Okay, so because tan theta is concerned with two-dimensional figure, graph, or we call it a slope. We call it a slope. I hope all of you could recall it has been taught to you in standard 9th or might be in 10th probably. So Anshuman, it has been taught to you in standard 9th or 10th? Slope. Standard 9th it has been taught to you. Okay. So while learning slope, now we are coming. So what is a tangent? And then what is the slope? Clear. So for that we need to make a frame of reference. Clear? I hope all of you could recall. So this is y and this is x. This is y and this is x. What I am doing, my students are actually on that side. So that's why when I am standing that way, so it's not visible. So I am making them easy to understand. Okay. The board is visible to all of you? Yes, sir. Okay, that's great. So this is a frame of reference, y and x. Clear. So now we can say this is a straight line. Okay, and this is theta. Clear. This is a straight line. This is theta. Many a times in physics I have discussed. And many a times in mathematics, the very first class of your trigonometry I have taught to you, and we have discussed on this. So now here, suppose I have to find a tangent at this point, or I have to find a tangent at this point. Clear? So now let's take this as so. See, at all the points,
you can see at all the points the theta will remain same. The theta will remain same. Here. So here across as the slope goes up and across all the points we can find. So this point, clear? Let us take this point as P and this point as Q. And the coordinates of this point are x2 and y2, and this one as x1 and y1. Clear? So x1 and y1. तो वही आप लोग देख रहे हो, this try to understand. अभी जब मैं बोल रहा हूँ x1, y1, x2, y2, so now we need to understand that the part of the x. So we are going to calculate. This is the part of the x. Yes or no? So the whole part of x till this is. Oh, I should have taken this. यहाँ पे लेंगे, sorry. ये x2 और y2. Clear? So यहाँ तक जो है till this. Okay, till this. So ये जो पूरा है, this one is x2. Yes or no? Understood? And this one is x1. Clear? ये x1 है और ये x2 है. तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है PQ, सपोज इसको हम लोग ये तो O है आपका, सो इसको लेट अस टेक समथिंग M. PQN triangle. Okay, the triangle PQ and N. It's a right angle triangle that I hope all of you could understand. Okay, so it is a right angle triangle. So now when I am asking about the tan theta of this triangle, PQN, triangle PQN, tan theta will be equals to perpendicular by base, or we call it perpendicular upon base. Clear? So when we speak of it, or when we think of that tan theta equals to perpendicular upon base, so here in this triangle, let us find tan theta कितना होगा भैया. तो हाँ, यहाँ पे जैसे हमने ये जो पार्ट, ये जो PM है, तो PM का वैल्यू हमें कितना मिला, x2 minus x1. क्लियर? वैसे अगर हम लोग ये जो पूरा पार्ट, this is y2, and ये जो पूरा पार्ट, this is y1. क्लियर? सो हमको QN कितना मिलेगा, equals to y2 minus y1. क्लियर बच्चों? चाहे बच्चे हो या फिर मेरे दोस्त हो, जो भी हो, आप लोग जो देख रहे हो. So, but it's going to be very useful for all the guys who were aspiring for JEE or something, or studying 11th or 12th, etc. It's going to be easy for them. It's very useful for them. Knowledge is useful for all, but mostly useful for them. Okay, so for that reason, बच्चों को मैंने एड्रेस किया, अब बाकियों को भी बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स को सबको एड्रेस कर रहा हूँ. तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू QN अपन PM. Yes or no? QN अपन PM. So QN मतलब जो perpendicular है, this is perpendicular और this is your base. Clear? So QN upon PM. अभी वो how much that we are getting? Now we can check. Okay, that is QN upon PM. Now अभी इसका हम लोग क्या करेंगे? QN का वैल्यू कितना है बेटा? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So here अभी हम लोगों को कितना मिला? जो tan थीटा है, tan थीटा जो है, it is equals to
y2 minus y1 upon x2 minus x1. Clear? So all across the points of this straight line, wherever you are going to search or wherever you are going to measure for a tan theta, जहां कहीं भी आप लोगों को ये जो पॉइंट जो है पूरा, अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन को एक कलेक्शन ऑफ लोकस लेंगे तो हर एक पॉइंट में आपको tan थीटा का वैल्यू अगर ऐसा हम लोग लेंगे तो tan थीटा का वैल्यू यही आपको मिलेगा x2 - x1 by y2 - y1. So it has been taught to you. Yes or no? ये स्लोप का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड लाइन में. तो ये थोड़ा मैं रिकॉल करा दिया आप लोगों को. तो अभी तो मसला क्या है भैया, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1 ये तो हमने पढ़ा है. तो इससे फिर dx और dy by dx का कहाँ आ गया, अभी कैसे हम लोग करेंगे, हो गया. अभी मामला कहाँ पे पेचीदा होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन जो है ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन आपका स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व होगा. Now we are coming. I hope all of you can. You must have done this. You can take screenshot of it. Okay, that's great. I'm rubbing. Now I'm coming to a very important thing. अभी तो हम लोग को स्लोप मिल गया. अभी देखते हैं भैयों कि ये जो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ये आपका वो है और यहां पे हम लोग कर्व ले लें. क्लियर? सो नाउ ये कर्व जो है वो दिखता है अच्छे से, हाँ? ओके, सो ये जो कर्व I'm taking it on weight so that you can make it more brighter. Clear? So एक कर्व हमने ले लिया. So there is some lighting issues. So ये जो कर्व हमने अभी लिया है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचें कि कोई भी दो पॉइंट्स, ये पॉइंट ले ले और ये पॉइंट ले ले. Understanding? If we have to find the tan theta, तो अगर tan theta हम लोग निकालेंगे इसका, इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? Let us find what will be the slope of this point. Sorry, ये पॉइंट का स्लोप जहाँ पे मिला बिल्कुल. So अभी यहाँ थीटा आ गया, है कि नहीं? अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालें तो भैया थीटा ये आ गया. यहाँ पे अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालें है कि नहीं, तो थीटा ये आ जाएगा. So in the previous case that we saw, when it was a straight line, जब ये straight line था, so थीटा हर एक पॉइंट में थीटा का वैल्यू was come up. Yes or no? So when it was a straight line, I told in the previous case, so that's why it is fixed. It is fixed when we get the slope of a straight line on any point, that we say that the value of tan theta equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Clear? क्योंकि वहां पे हम लोग को वो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता था. अभी ये जो कर्व है आप देखो, ये कर्व पे जितना सारा पॉइंट्स हम देखेंगे, हर एक पॉइंट में थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा. क्लियर? थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग को मतलब वी कैन कैलकुलेट. ओके, तो क्या कैलकुलेट करना है हमको अभी? नाउ सपोज आई हैव टू फाइंड द tan थीटा. ओके, मतलब स्लोप. tan थीटा मतलब इसको हम लोग स्लोप लिखते हैं. I hope all of you could recall at this point. Okay, so ये थीटा यहाँ, तो इस पॉइंट पे तो थीटा चेंज होता जा रहा है, तो tan थीटा का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो रहा. It's okay. So in the previous case, because it was a straight line, the theta was constant. So हम लोग को y2 minus y1 का वैल्यू कांस्टेंट मिलता था. यहाँ पे
मुझे रेसिप्रोकेशन कांस्टेंट मिल जाता, तो थीटा विल बी कांस्टेंट ऑफ अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पे जैसे कर्व आ गया, I hope all of you must be understanding. It's not that easy to understand. It is difficult, but still I am trying to make it very easy to understand for all you all. ये आप लोग देखो, ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया और ये जो है आपका y एक्सिस है और ये जो है x एक्सिस है। क्लियर? Abhishek, could you understand? Not understanding. You join later. Okay. ये frame of reference that you understand. That's great. You understand this is a curve. In the previous case, it was a straight line. You understood the difference. You understood how to find the tan theta or the slope of a straight line. It has been taught to you in standard 9. It has been taught to you in standard 9. It's okay. So यहाँ पे जितना हमने लिया, हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज होता जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा भैया ये अगर ऐसे कर्व हो गया, तो भैया यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो स्लोप थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा, है कि नहीं? पर जब ये स्ट्रेट लाइन था तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे थीटा का वैल्यू समान आता है। ओके, सो इसीलिए जब हम लोग वो ट्रायंगल बनाते थे, तो हर ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू एक आता था, क्योंकि वो जो बेस जो है वो पैरेलल होता था टू द एक्स एक्सिस। y जो होता है यहाँ पे भी होगा, लेकिन जो हम लोगों को जो उसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो मिलता था वहां पे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं मिलेगा, क्योंकि सपोज इन द as compared to the previous figure, all of you take this as compared to the previous figure, यहाँ पे अगर मैं बोलूं this is p and this is q, and the coordinates of p and q will be x1 and y1 and x2 and y2. Clear? और यहाँ पे अगर let me take a parallel line to x axis and y axis, and this is pq and a. तो भैया ये तो आपको साइड मिल गया, ये आपको साइड मिल गया, लेकिन थीटा जो ये आपका हाइपोटेन्यूज बना है। तो ट्रायंगल कैसे बना हमारा, ऐसे करके ये ट्रायंगल नहीं होता है। ओके, दिस इज एन ऑड ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट कॉल दिस एज अ ट्रायंगल, बिकॉज़ ये तो साइड नहीं है, ये काफी है, दो साइड हम लोगों को मिल गया। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? ये तो थीटा नहीं आएगा, ये थीटा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। थीटा ऐसा होना चाहिए था, ये थीटा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ रहा। So now this is the figure that we are getting, so we cannot get the slope of it. So here what we are doing, at every point the slope changes, the slope changes। यहाँ पे अगर ले लें तो ये थीटा का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ ले लें थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू इसको काटता जा रहा है पूरा। Okay, so the theta changes at all the points of this curve. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? What best that we can do? इसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लियर? अभी इसको मिटा के मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं भैया, और वो टेक्निक जो है, this is going to be very helpful to you all, and it's going to make you understand very easily the concept of differentiation. It's going to make you very easy to understand differentiation. Okay. Clear? कोई शक? अच्छा, इसमें भरा है? Okay. So this is differentiation. Clear? अभी जो इमेज हमने ड्रॉ किया था, जिसको लेके प्रॉब्लम था,
तो हमने क्या ये देखा था कि वो जो ट्राइंगल हम लोग सोच रहे थे, वो उस ट्राइंगल का तो दो साइड हम लोगों को मिलता था, P और A मिलता था और QM मिलता था, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम लोग को मिलता नहीं था। पर हमको कैलकुलेट करना है इसी को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दैट इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2। क्लियर? अंडरस्टूड? So here comes the rule of differentiation. Here comes the rule of differentiation. तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो Q है, ये Q का पॉइंट P के इतना नजदीक ला दूंगा, इतना नजदीक ला दूंगा कि हमको एक छोटा सा ट्रायंगल मिल जाए। मतलब ये जो पॉइंट P है और Q का वैल्यू जो है नेक्स्ट पॉइंट, तो कॉन्जिक्यूटिव, अगर ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना है तो ये कैसे बना है, लोकस को लेके ऐसे 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 करके बना है ना। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। फिर भी आपको मैं समझा देता हूं, जो बच्चों को ये नहीं मतलब ये थोड़ा पेचीदा लगता है, स्टिल आई एम मेकिंग ट्राइंग टू मेक इट मच इजियर। ये फिगर आप समझ गए, ये फिगर हमको मिलता था कर्व वाले जो भाई साहब थे, कर्व वाला जो हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो हम लोग कर्व लिए, कोई भी कर्व आ गया, इट इज नॉट कि वो इट हैज टू गो थ्रू द ओरिजिन, कोई भी कर्व आप ले सकते। तो कर्व में अगर हम लोग स्लोप खोजेंगे तो हमको ऐसा ही कोई ट्रायंगल मिलेगा, मतलब ट्रायंगल नहीं, ऐसे कोई ज्योमेट्रिकल इमेज मिलेगा जिससे हम उसको ट्रायंगल नहीं बोल सकते। राइट एंगल तो मिल जाएगा लेकिन थीटा हमको नहीं मिलेगा, 90 माइनस थीटा हमको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग छोटा सा ये जो कर्व है, ये कर्व का दो पॉइंट को अगर जॉइंट कर करके हम लोग जाएंगे तो हर एक दो पॉइंट का, हर एक कॉन्जिक्यूटिव दो पॉइंट का हम लोग को स्लोप वैल्यू मिलता है। तो हम लोग इसको जोड़ते रहेंगे तो ये पूरा उसका एक एवरेज, मतलब इसको पूरा मिला देंगे तो ये पूरा फिगर का जो एक सम कर देंगे अगर पूरा टेंजेंट, तो हमको टेंजेंट मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? मतलब अगर ये कर्व है ना, तो ये देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये आपका P है, मैं Q को यहां पे शिफ्ट करूंगा, तो फिर P और Q में ये ट्रायंगल मिल जाएगा जहां पे हमको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स में स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा हमको। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट अगर लेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, तो उसमें अगर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे तो हमको एक ट्रायंगल मिल जाएगा छोटा सा। अंडरस्टैंडिंग है ना? तो फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को कॉन्जिक्यूटिव सबको मैं मिलाता जाऊंगा, तो फिर हमको क्या होगा, ऐसे ऐसे करके हम लोगों को ट्रायंगल मिलता जाएगा और एक हल्का हल्का सा छोटा छोटा स्लोप मिलता जाएगा। सो दिस इज टोल्ड, जैसा हम लोग लिख देते हैं tan theta equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, है कि नहीं? तो y2 minus y1 और x2 minus x1 ये जो है बड़ा लाइन अगर होता तो हम लोगों को एक बड़ा सा कोई फिगर मिलता, कोई अमाउंट मिलता। लेकिन अगर दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स में हम लोग लें तो y और x वैल्यू जो है इतना नजदीक आ जाएंगे, वो करीब करीब जीरो हो जाएंगे, लेकिन जीरो नहीं, करीब करीब जीरो हो जाएंगे लेकिन जीरो नहीं होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। वो लिमिट में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग इसको बोलो जब y2 और y1 में
इतना कम डिफरेंस आ जाए ताकि वो टेंड्स टू जीरो, इट इज अप्रोचिंग जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, इसको हम लोग dy बोलेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा, और इसको हम लोग बोलेंगे dx। तो ये भी एक छोटा सा टुकड़ा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो ये जो छोटा सा टुकड़ा एक y2 यहाँ पे y2, ये y2 और x2 और y2 को हम लोग नजदीक ले आए, तो ये एकदम छोटा सा पीस मिला। तो ये y2 माइनस y1 जो है इतना छोटा है, तो इसको हम लोग dy बोल सकते हैं। बट द वैल्यू ऑफ dy टेंड्स टू जीरो, नॉट जीरो। बहुत छोटा, मतलब मे बी 0.000000001 समथिंग, लेकिन बहुत इतना छोटा है, लेकिन जीरो नहीं है। उसको अगर हम लोग मैग्नीफाई करेंगे तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा जिसमें एक छोटा सा थीटा भी होगा। ओके, तो हम लोग को ये मिला, ये आपका x2 और y2 और ये x1 और y1, सॉरी ये y1, ये मिनिएचर कार्विंग है। तो ये जो छोटा सा नन्हा सा हम लोगों को ट्रायंगल मिला, तो x2 y2 और x1 और y1 में जब हम लेते हैं तो ये जो टुकड़ा है भैया, ये करीब करीब हम लोगों को, मतलब y और x में जो डिफरेंस होगा करीब करीब हम लोग को जीरो होता है। तो लेकिन जीरो नहीं होता है, करीब करीब अप्रोचिंग जीरो बट नॉट एट ऑल जीरो। तो उसी को हम लोग बोलेंगे dy, और हाँ डिफरेंशिएट ऑफ y और डिफरेंशिएट ऑफ x। ओके, सो ये इतना छोटा है कि हम लोग y2 और y1 में हम लोग नाप नहीं सकते, इसलिए हम लोग छोटा सा रखेंगे। अगर इन सब को हम लोग dy और dx को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब हर एक जो छोटा छोटा सा ये निकलेगा ना हमको हमारे पास आ जाएगा, छोटा छोटा सा इस स्लोप का, अगर पूरा स्लोप को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को ये जो पूरा कर्व का क्यूमुलेटिव मिल जाएगा। उसको छोड़ते हैं, ये समझते नहीं है, बाद में समझेंगे इंटीग्रेशन का वाला। ओके, तो हम लोग को कहां पे मिलेगा ये छोटा ट्रायंगल, ये हम लोग खोज रहे थे और हम लोग को मिल गया। कर्व में हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉइंट्स है या फिर दो छोटा पॉइंट्स नजदीक है, दे आर अप्रोचिंग टू जीरो बट जीरो नहीं है, वो छोटा लाइन का जो स्लोप है, उस स्लोप का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो tan थीटा इक्वल्स टू dy by dx, tan थीटा इक्वल्स टू dy by dx, dy upon dx। ओके, अंडरस्टूड? जोर से बोलो। यस सर। नहीं, फिर भी पंच नहीं मिलता है। यस सर। इसमें मिलता है थोड़ा हल्का सा। ओके, तो डिफरेंशिएशन हम लोगों को यहां पता चला कि हम लोगों को जो स्लोप मिला कर्व का, जो स्लोप मिला, वहां पे हम लोगों को मिला tan थीटा इक्वल्स टू dy by dx। तो dy ये क्या है, द डिफरेंशियल ऑफ y, मतलब वो जो हम लोगों को छोटा सा जो एक मिल रहा था एक ट्रायंगल, ये जो डिस्टेंस है ये dy है और ये जो डिस्टेंस है ये dx। ओके, और ये छोटा सा नन्हा सा जो थीटा है वो थीटा का वैल्यू है dy by dx। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। अभी कर्व का हम लोग को स्लोप मिल गया एक छोटा सा, लेकिन ये कर्व का स्लोप नहीं है, ये स्लोप है ट्रायंगल का, कर्व का एक छोटा पार्ट। ओके, सो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग डिफरेंशियल बोलते हैं, मतलब पूरा का अगर नापा नहीं जा सकता तो एक छोटा छोटा सैंपल को लेके जोड़ते हुए हम लोग जाएंगे तो पूरा का मिल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो जहां कहीं पे भी हम लोग कोई भी डॉट को लेके, कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी जगह में हम लोग क्या उसका टेंजेंट निकालेंगे। अच्छा, आप लोगों को टेंजेंट का जो कॉन्सेप्ट को पता है कि नहीं, ये भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। तो टेंजेंट क्या चीज होता है, क्लियर? देखो, अगर ये कर्व है या सर्कल,
एक कर्व ले लेते हैं। ओके, एक कर्व ले लेते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, y और x, जैसे मैं बोला कि टेंजेंट का जो चीज है, क्या चीज है टेंजेंट, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये जो कोई कर्व आता है ना, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट में हम लोग बेस के साथ हम लोग चाहते हैं एक थीटा बनाए ताकि उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकें। लेकिन ऐसे कर्व्स में थीटा नहीं बनता। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन आप लोग ले लो, एक चीज आप लोगों को पूछूंगा, ये आप लोग बता देना, कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ले लो कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोगों को स्लोप का वैल्यू मिल जाए कि हर एक पॉइंट में वो जो निकलेगा एक ही जगह होगा, तो वो एक ही, मतलब लेकिन कर्व में क्या होता है कि हर पॉइंट पे ये जगह चेंज होगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉइंट आप ले लो, वो दैट विल लाई अपॉन द लाइन, okay, straight line is there. So that's why this is how the curve and straight lines are different. तो अगर tangent हम लोग निकाले तो straight line का तो मिल जाएगा, लेकिन कर्व के लिए हम लोग को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कर्व में हम लोग छोटा सा स्ट्रेट लाइन होगा, जहां पे स्ट्रेट लाइन होगा उसी स्ट्रेट लाइन को जोड़ते हुए तो कर्व कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा ना, ऐसे 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 करके बना होगा ना। तो हर एक छोटा पीस का जो है उसका टेंजेंट निकालते हैं हम लोग रखेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। पंच नहीं मिला? यस सर। तो अभी हम लोग ये डिफरेंशिएशन और ये जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों को अभी मिल गया। मतलब है कोई भी फिगर का, कोई भी पॉइंट, दो पॉइंट का हम लोग जब tan वैल्यू निकाल रहे हैं, टेंजेंट tan थीटा हम लोग निकाल रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो y अपन x, y एक्सिस से x एक्सिस के मतलब कंपैरिजन, मतलब दोनों को लेते हुए, दो y एक्सिस और x एक्सिस का रेफरेंस लेते हुए, इसलिए इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। जो फ्रेम हमने बनाया था वो इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, मतलब y एक्सिस और x एक्सिस का ये जो है ये रेफरेंस देता है, मतलब एक कोऑर्डिनेट है। तो ये हम लोगों को पता चल गया कि कहीं पे अगर दो कॉन्सेक्यूटिव छोटे छोटे नियरेस्ट पॉइंट हैं, तो कोई भी फिगर हम लोग छोटा छोटा पॉइंट का tan वैल्यू निकाल के उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। आप सोचो अगर हमको ऐसा कर्व मिल गया, ओके, ऐसा कर्व मिल गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट में अगर टेंजेंट हम लोग सोचें तो टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट में टेंजेंट कितना होगा, ये होगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे देयर विल बी अ लाइन, द टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम लोग अगर tan 0 डिग्री कितना है, tan 0 डिग्री कितना होगा, tan 0 डिग्री sin 0 by cos 0, sin 0 degree is 1, sin 0 degree is 0 and cos 0 is 1. तो 0 by 1 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री कितना है, 0 आया। तो यहाँ पे जब थीटा 0 है, जब थीटा 0 है, तो यहाँ पे y और x, यहाँ पे क्या है, y और x का वैल्यू कैसा होगा, कितना हम लोग नापेंगे, कैसे नापेंगे। तो दो पॉइंट्स अगर एक लाइन में लाए अपन, अगर दो पॉइंट्स लाए अपन, तो मतलब वो थीटा जो हम लोग एक हाइपोटेन्यूज ले रहे थे ना, द हाइपोटेन्यूज विल लाई अपॉन द बेस itself, hypotenuse will lie on the base, so that's why the theta is 0। तो यहाँ पे y कितना होगा, 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, बेस हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन y 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? So that's why
tan 0 डिग्री इज 0। और बाकी जो जहां पे आप सोचो, जहां पे जो tangent it is parallel to the x axis, it is parallel to the x axis, there will be no slope, slope का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? नाउ अभी हम लोग ये जो जहां तक जितना पढ़े हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग 11th में क्यों आए और साइंस क्यों लिए, लेकिन मैं बता दूं ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यू ऑल डायरेक्ट ये एक बार दिमाग में आ गया, ये एक बार आपके समझ में आ गया, तो आप लोगों को ये जो मोबाइल का भूत चढ़ा है ना गेम खेलने का, ये पूरा दिमाग से निकल जाएगा। पूरा दिन भर आप लोग एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे और वो आप लोगों को मिलता जाएगा। क्लियर? अभी इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं थोड़ा, बहुत हम लोग फनी बनाते हैं इसको समझना। तो लेकिन मैं इतना सारा चीज क्यों आपको बोला, मतलब रिलैक्स करने के लिए बोला कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें छोटा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक लोचा है, छोटा सा लोचा, मतलब कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मूले जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये जो डिफरेंशियल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आज तो बहुत मजेदार होने वाली है आज की क्लास। हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और अगर वक्त मिली तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ओके, जैसे मैं बोला कि हम लोग प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे। फिर भी अभी पहला जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 में ये बोलता है इफ y इज इक्वल्स टू एनी नंबर, आप ले लो सेवन, देन dy by dx और dy अपन dx कितना होगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका जो है 0 गोल 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 गप्पा होता है, तो इसका dy by dx क्या होगा, गोल गप्पा, मतलब 0 ही होगा। अंडरस्टूड? रसगुल्ला, भैया हम लोग ओडिया है, हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला, तो ये जो है ये रसगुल्ला हो जाएगा dy by dx। तो y और 7 अगर होता है तो ये पॉइंट नंबर 1, कोई भी y का वैल्यू अगर कोई नंबर हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू, ओके, y इक्वल्स टू पाई, तो क्या होगा, क्योंकि ये नंबर है। ओके, अंडरस्टैंडिंग? सो ये पॉइंट नंबर 2 हम लोग लेके चलते हैं भैया। पॉइंट नंबर 1 मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं लेट y इक्वल्स टू x, तो ये तो वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, तो dy by dx कितना होगा। शुभम है, शुभम ने ज्वाइन किया है इसमें, आई होप ही मस्ट हैव ज्वाइन। तो शुभम बेटा हाय, आई कुडंट एक्चुअली टॉक टू यू बिकॉज, तो यहाँ पे तो वो मौका नहीं मिलता, तुझे शेयर किया था मैंने वो फॉर्मूला पूरा, बच्चों को भी दिया था। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग इट। सो ये जो फॉर्मूला है भैया, x टू द पावर n, y इक्वल्स टू x टू द पावर n, ये फॉर्मूला, ये पॉइंट नंबर 2 है, फॉर्मूला नंबर 2 है। y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो dy dx होगा n into x टू द पावर n minus 1। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 2, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। y इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो dy by dx will be
एक्स क्यूब। क्लियर? तो फिर dy by dx हम लोग को कितना मिलेगा? ये n है, यहाँ पे a इक्वल 3 है, तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो a का वैल्यू 3 है, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। ओके, ये 3 माइनस 1 लिख देते हैं, फिर इसको मतलब इजी बनाते हैं। 2। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। तो फिर चलते हैं। मैं अगर देता हूं लेट अस फाइंड अ क्वेश्चन, आप लोग समझदार हो और ये आप लोगों को इजीली आ जाएगा शायद। मैं बोला हूं अगर y का वैल्यू रूट ओवर x है, रूट ओवर x है, तो dy by dx कितना आएगा? कितना होगा पृथ्वीराज चौहान? dy by dx कितना मिलेगा? साइंस जब मैं बोलता हूं रूट ओवर x, अंशुमान ने सही बोला कि x टू द पावर 1/2। ये जो बेसिक है, ये बेसिक जो वैल्यूज है ना, ये आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों को याद करना चाहिए, ये बहुत बेहद जरूरी है। ये कम से कम अगर मैं बोलूंगा x, मतलब बाय डिफॉल्ट a का वैल्यू जो है 1। क्लियर? अगर रूट ओवर x बोलता हूं तो x का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हाफ। तो अगर तो अभी कितना होगा? n का वैल्यू हमने लिया है, यहाँ पे कितना आपको मिला? n इज हाफ, तो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, हाफ माइनस 1। पक्का? तो हम लोग को मिल गया 1/2 इंटू x टू द पावर हाफ, 1/2 माइनस 1 बिल्कुल -1/2, -1/2। मतलब इसको रिजॉल्व करते हैं, फिर 1/2 इंटू x टू द पावर -1/2 का मतलब है x टू द पावर इंटू 1/x टू द पावर हाफ। इसका मतलब है कि हाफ इंटू 1/√x। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2√x। क्लियर हुआ? हो गया? नहीं हुआ? देखिए, हाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाले बेटा। ठीक है, फिर भी रॉकेट साइंस बनाते ही हो सकता है कि कभी कभार हम लोग जो है ना, बड़े टीचर्स, हम लोग बड़े टीचर लोग हैं, हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। ये जब मैं आप लोगों के बदले था, मैं भी बिल्कुल नहीं समझता, मुझे कुछ भी दिमाग में याद मतलब आता नहीं, कैसे कर लेते हैं ये सब। लेकिन ये हम लोग जो आजकल दिखाते हैं टीचर गिरी सर, ये समय का ही देन है, टाइम का ही, वक्त का ही देन है। तो इसका क्रेडिट हम लोग ले नहीं सकते, इसको वक्त को देना चाहिए। और बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। ये हम लोग बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस है बच्चों के लिए। तो बेटा दामोदर, ये आपको y इक्वल्स रूट ओवर x का मतलब है y इक्वल्स टू x पर हाफ। पक्का? तो हम लोग को ये मिला ना, y का वैल्यू x पर 1/2, जहां पे n का वैल्यू कितना होगा? 1/2 हुआ। तो dy by dx कितना होगा? फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, a into x to the power n minus 1 है कि नहीं? उतारो मत, इसको समझो आप क्लास पूरा। ये समझे कि नहीं? ये फॉर्मूला के हिसाब से हम जा रहे हैं, और बाकी n का वैल्यू कितना है? 1/2 है। ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आपको, ये स्कूल में बचपन में पढ़ाया गया है। तो हाफ इंटू x टू द पावर ये x है, 1/2 -1। इसका मतलब क्या है?
1/2 माइनस 1 मतलब ये आपको आता है बोला 1/2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 2/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2 क्लियर दैट इक्वल्स टू हाफ इनटू h टू द पावर माइनस 1/2 रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आया एक्सप्रेशन थोड़ा बदला करो जब समझ में आता है तो हम लोग खुश होते हैं या फिर हाँ आया लेकिन अगर वही एक्सप्रेशन अक्रॉस द क्लास रहेगा तो टीचर कंफ्यूज हो जाता है भैया ओके तो अच्छा टीचर तो अभी हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ इसका मतलब कितना होगा एक्स टू द पावर माइनस 1 का मतलब 1/x है ये आपको पता है सब मुंडी हिला रहे हैं तो फिर ये चलो हाफ जो है वो वहीं पे है वहीं पे था उसको रख देते अभी x के साथ छेड़खानी करते हैं तो इनटू 1/x टू द पावर हाफ सही है कि नहीं इसका मतलब है अगर ये आपको पढ़ाऊंगा मैं तो फिर मैं मेरा बहुत प्रमोशन हो जाएगा फिर तो 1/2x हो गया ओके आप लोग जब 11 में आते हो तो ये सारी चीजें ये कैलकुलेशंस हम लोग जब डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीजें दिमाग में ऐसे चलना चाहिए तो 1/2 into 1/2x हो गया इक्वल्स टू 1/2 रूट x हो गया हाँ हुआ यहाँ तक मुझे करना नहीं चाहिए था यहाँ पे छोड़ देना चाहिए था ताकि आप बाकी आप सॉल्व करो तो आगे जाके अभी करेंगे हम लोग अपन बहुत सारा करेंगे चलो हाँ यहाँ तक समझ में आ गया क्लियर कोई शक पक्का हाँ लॉक किया जाए यस सर पक्का तो हम लोग लेते हैं और एक सेकेंड हाँ वो फर्स्ट वाला हमने अगर मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू x इसको करके दिखा y इक्वल्स टू x इसको करके दिखा तुरंत dy by dx कितना होगा dy by dx कितना होगा आप लोग जो लोग से कर रहे हो आप लोग सॉल्व करो इसको ये क्वेश्चन है ये फॉर्मूला नंबर 3 है क्लियर 0 कितना हो गया 0 कैसे आ गया आपका हटफन हो जाएगा मेरा हाँ हटफन हो जाएगा 1 होगा पक्का कैसे होगा वो सर x का पावर 1 है तो m 1 होगा then x to the power 1 minus 1 हाँ so x to the power 0 तो यहाँ पे a कितना है 1 है तो ये होगा 1 into x to the power 1 minus 1 तो 1 into x to the power 0 और x to the power 0 कितना होता है 1 होता है तो 1 into 1 equals to 1 understood clear हो गया पक्का अच्छा इसके बाद लेते हैं और चीज अगर हम लोगों को कोई कांस्टेंट के साथ अगर कुछ मिलता है y equals to let's say 5x square y equals to 5x square तो यहाँ पे जो 5 है जब 5 वेरिएबल के साथ है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी जब वेरिएबल के साथ है उसको हम लोग निकाल देते हैं निकाल मतलब वहीं पे रहेगा फिर हम लोग सिर्फ इसका क्या करेंगे इसका dy by dx हम लोग निकाल लेंगे ओके तो x स्क्वायर का कितना होगा तो 5 into d of x square by x है कि नहीं dy by dx मतलब dy का वैल्यू कितना है और सो अभी इसका निकालो कितना होगा 2x 5 into 2x that equals to x हो गया पक्का इजी है कि नहीं बहुत इजी है ओके तीसरा फॉर्मूला जो है वो हमने कर दिया
अभी हम लोग काम करते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको देते हैं अभी, ये आप निकाल के रखो। ओके, तो वो है y इक्वल्स टू 2√x। चलो भैया करो इसको, y इक्वल्स टू 2√x। सौम्य बेटा कूल। सो ये आप लोग कर रहे हो शायद, जैसे हमको बोला था कि जो q का वैल्यू है हम लोग वी हैव टू कीप इट असाइड, मतलब q का वैल्यू जहां पे है वहीं पे रहेगा। हाँ, तो कितना हो गया 2/2√x। तो 2 तो कट ही जाएगा भैया, 1/√x हो जाएगा। हाँ, सो जैसे ये dy/dx कितना होगा, 2 पे रहेगा, छेड़खानी अपन नहीं करते इसके साथ, और बाकी जैसे x टू द पावर हाफ। ओके, that equals to 2 into 1/2 into x to the power 1/2 minus 1। तो ये हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये होगा x to the power 1/2 minus 1, मतलब x to the power that implies -1, sorry -half, that implies ये मिल गया x to the power 1/2x, या फिर x to the power हम लोग 1/x to the power आप बोल सकते हो। हाँ, तो इसका हम लोगों को कितना मिला, dy/dx 1/2x हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन आना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ये सारी चीजें जो है इसलिए बोलते हैं कि स्टैंडर्ड 8 में और 9 में आप लोग जो है मैथमेटिक्स जो है वो करते रहेंगे। ये अलजेब्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आगे फिर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास अभी वक्त बहुत कम है, फिर भी हम लोग चलते हैं। तो एक बाकी जो फॉर्मूलेज हैं वो थोड़ा याद करा देते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू sin x, तो dy/dx जो है वो है cos x। ओके, तो अगर y का वैल्यू sin x है तो dy/dx कितना होगा, cos x होगा। अगर y का वैल्यू cos x है तो dy/dx जो है वो मिलेगा माइनस sin x। क्लियर? पक्का? वेरी गुड। अभी ये फॉर्मूले का अवेलेबल है मार्केट में, y का वैल्यू अगर e to the power x, या तो फिर y का वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे a to the power x, ये दोनों अलग चीज है, ये आपको याद होगा शायद, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, तो y to the power ऐसे y equals to e to the power 3x अगर है तो dy/dx जो है वो e to the power x log e base e। तो इसका वैल्यू कितना है बेटा, ये 1 ही है, लॉगरिथम पढ़े नहीं वहां, तो खाली ये याद रखो e to the power x का, e to the power x का जो dy/dx है वो वही है, वो वही है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। अंडरस्टूड? इज इट? पक्का लॉक किया जाए? तो अभी a to the power x हम लोग ले रहे हैं, a to the power x ले रहे हैं, तो इसका होगा कितना, a to the power x into log e base। ओके, क्लियर? तो ये जो है dy/dx will be a to the power x into log e base। क्लियर? तो ये फॉर्मूले जो है ये आप लोग करते रहो
और पढ़ाई करते रहो और याद करते रहो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लेते हैं तो उसका भी जो dy by dx है उसका तरीका है निकालने का, वो मैं इन डीप नहीं जा रहा हूं, खाली ये बता रहा हूं आप लोगों को। यू मस्ट लर्न इट, यू मस्ट स्टोर इट इन योर ब्रेन। आपको रटना होगा, इसको आपको याद करना होगा, यू हैव टू मेमोराइज इट। क्लियर? सो इफ y equals to tan theta, okay, then dy by dx कितना होगा? 6 square x. हाँ? X square. मैं बोल रहा आपको dy था। अच्छा ठीक है, करते हैं इसको, करते हैं, बहुत मजेदार है। अच्छा dy by dx कितना होगा? 6 स्क्वायर। भैया यहाँ पे थीटा हाँ 6 square. बिल्कुल नहीं, ये खंबा हो जाएगा, क्योंकि इसको ये tan थीटा को अगर ये x लेता हूं यहाँ पे तो इसको ये कांस्टेंट ले लेगा, इट वोंट रिकॉग्नाइज, क्योंकि ये जो है ना थीटा वैल्यू है ना, तो हम लोग को यहाँ पे dy by d थीटा लेना पड़ेगा, तब जाके tan थीटा का जो है वो 6 स्क्वायर थीटा. ओके। पक्का? अंडरस्टूड? क्लियर? अच्छा अगर y इक्वल्स टू sec थीटा या फिर sec x, sec थीटा, तो dy by d थीटा कितना होगा? sec थीटा इनटू tan थीटा। ओके, अगर y का वैल्यू cot थीटा होता है तो फिर dy by d थीटा कितना मिलेगा? माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर? ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा मेमोराइज करो, आप लोग याद करो, ये प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ अभी जो है वो यू हैव टू गो थ्रू, आई कैन शेयर इट। मैं इसके बाद एक बढ़िया सा रिकॉर्डेड ट्रस्ट एजुकेशन ट्रस्ट के पेज पे मैं शेयर कर रहा हूँ आपको पूरा सारा का सारा फॉर्मूला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अभी हम लोग अलजेब्रा करेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 है, ओके, तो यहां पे हम लोग जो है इसका हर एक का बारी बारी करके हम लोग निकालेंगे। I don't feel or I don't think that we can complete by today itself, otherwise I will schedule another one class for this and it's going to be very important for you all. So कितना होगा x का? जल्दी बताओ। ये 2x हुआ प्लस इसका कितना निकालेगा? 2 निकालेगा और इसका माइनस 0, तो ये कितना हुआ? 2x प्लस 2 dy by dx। क्लियर? और ये याद करो भैया, अगर ये x है, यहाँ पे x से तब जाके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे dy by dr हम लोग ले लेते तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। क्लियर? सो अभी हम लोग ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग देख रहे हो कि अगर इसको y अगर हम लोग और एक देते हैं, तुरंत करो, बड़ा करो, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाना है, अभी वक्त नहीं है शायद आज। तो y इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस रूट क्यू प्लस 17p। ओके चलो, तो इसका क्या निकलेगा? dy बाई, यहां पे देखो 2 वैल्यूज हमने लिया है। ओके, तो इसको छोड़ो, इसको बाद में रखते हैं। फिर माइनस रूट पी ले लो, इसको 17 ले लो।
ये तो बाद में सोचना हो रहा है, तो ठीक है, इसका क्या लेंगे, dy by dp लेंगे। तो चलो इसको कर लो पहले, रॉकेट साइंस है नहीं बिल्कुल। तो निकाल दिया, इसका कितना हुआ 2p माइनस 1 by 2 रुपी प्लस 0 17 है, तो 2p माइनस 1 by 2 रुपी। क्लियर हो गया बस। तो आज के लिए अभी शायद we are calling up the session itself. So next time we will meet, but you recall that this is the Kautilya and you are watching the live session of learning this at the Kautilya Educational Trust page. And remember, there is no other branch of the Kautilya. The Kautilya itself is unique, and we are coming up with a new branch of Faridabad very soon. So now I am talking one thing, that you can share your views and ideas, and you can visit our website www.thekautilya.com, www.thekautilya.com में आप विजिट कर सकते हो। You can call us to 1-800-890-3760, 1-800-890-3760. It's a toll-free number, and I'm trying more. I myself is a teacher since 20 years, so I'm trying to make it very easy for you all, and I want the Facebook to be used very productively. So that's why I wanted it to make it a learning platform, जहाँ पे हम लोग कुछ सीखें। हम लोग मौज मस्ती करते हैं, हम लोग दोस्तों को छेड़ते हैं, हम लोग अपना पोस्ट डालते हैं, फोटो निकालते हैं, कुछ बहुत सारा चीज हम लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये लाइव सेशन में हम लोग डांस दिखाते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। लेकिन अभी ये जो मेरा डांस आपने देखा, ये डांस आगे चलता रहेगा, और ये कौटिल्य का जो मैथमेटिकल डांस है, या फिर फिजिक्स का डांस होगा, या फिर केमिस्ट्री का डांस होगा, फिर हम लोग बाद में इंग्लिश और फिर बायोलॉजी का लेके आएंगे, तो आईटी का, कंप्यूटर साइंस का लेके आएंगे, और बहुत आप लोगों को एंटरटेन करेंगे और पढ़ाएंगे, और ये across the whole year it will continue. But those who are really interested to enjoy the session offline, those who are really like the class itself, and if you want to learn it very offline directly from us, so please come to visit our address at plot number 46 besides Hotel Suraj Palace, Info City Road, Patia, Bhubaneswar 24. And I'm Dr. Devitosh Acharya, I'm the chairman of this. My guys are present over here, Shuman, Sai, Soumya, Abhishek, Prithviraj, Neenu, and many others. So we all are learning over here. So for the day itself, I'm calling it off. I'm saying bye to all of you, and I'll be arranging very soon another class. I'll be coming with the product and chain rule, many things, application of derivatives that we will be learning. I couldn't make it within 1 hour because it's so vast. Actually, I tried to make it, but your participation is really needed, and my guys are there participating. So I'll be making it more easier in the next session. So love you all, bye bye all, and take care of your health. Stay away from each other, means make distance from each other, wear masks, use hand sanitizer always, and you follow all the rules of COVID-19. Okay, bye bye. Thank you.